Hello, friends. Today we have Saroj G. Agarwal. She's a certified psychological counselor. She runs a platform called मन की बात a journey within. इन्होंने हेल्प किया है, मदद किया है मोर देन 100 पीपल इन देयर लाइफ. आज हम लोग बहुत सारे ऐसे इश्यूज के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में जनरली हम लोग इग्नोर कर देते हैं या ऊपर ऊपर से थोड़ा सा बात करके छोड़ देते हैं. मेंटल हेल्थ के बारे में जो आज के डेट में बहुत ज़रूरी है, but we are not giving it enough importance. So let's begin. Hello, Suroji, and welcome to the podcast. Hello, Preetika. Thank you for giving me this opportunity to be on your podcast. And one more thing, let's make that hundreds of clients. Absolutely, hundreds of clients. That's what I meant. हाँ, ओके, सरोजी प्लीज आप बताइए कि आप इस फील्ड में आए कैसे, आपको इंटरेस्ट कैसे आया? See, I remember it was 2016. Both my children, my son, I have got a son and a daughter. So my daughter was into medicine and my son was studying CA. So दोनों का रूम दिन भर लॉक्ड रहता था और मैं बाहर सोफे पे बैठ के सिर्फ टीवी देखती थी. And I was getting very bored. And due to certain circumstances, I was, out of the social circle also because of certain reasons which I cannot explain here. But what happened? The depression started in कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं. Then one day I saw one of my friends, Facebook pe she put this poster, I am a counselor. So I called her up and I said, Ki, what is a counselor? What do you do? So she told me that I did this course under Jadavpur University and this and that. But you can do this course from Cornash. So I went to Cornash, had a talk with the proprietor there. And I said, chalo, self-development ke liye, at least I'll get to learn something because learning is my hobby. I like to learn whatever comes in my way. So I said, चलो कुछ नया करके देखते हैं. 1 महीने का तो बात है. If I don't like it, I'll drop off. But the first class, the first question the Devlina ma'am asked me, who is Saroj Agarwal? So I said, Saroj Agarwal is a housewife, mother of two. Uh, I have a lovely house, lovely husband, wonderful life. I'm very happy, this, that. She said, I don't want this. I want who is Saroj Agarwal. That set me thinking, who am I? I did not know. I was not aware of my inner self. I was not aware that there was my own personality because I was always surrounded with my own people around. My life was with my people. My life was because of my people. My life was for my people. मुझे नहीं पता था मेरी अपनी भी कोई एक आइडेंटिटी है. बस उस दिन का दिन और आज का दिन. One after another, I did 3 courses with Cornash. And then I said, I need a certificate also because in future certificate to zaruri ho jata hai. So I joined a PGDM course with another institute and then I got certified. And God bless, I'm very happy to be in this. I'm very, very happy. And the best thing was I got to know that I can do something like this to help people, which was one of my vision of my own life. Saroji, when you got certified in so many ways, in so many courses, and you started learning about things which you didn't know before, did you also see changes in your life as well? Did you make changes in your personal life, in yourself? Absolutely, absolutely. You should ask this question to my children. जब मैं कॉर्नाश जाती थी और मैं आती थी, द वे दे सॉ द चेंज इन मी, वो लोग हमको बोलते थे, मम्मी आप कॉर्नाश कभी मत छोड़ना. Because anger bouts, the screaming, the shouting, भाई frustration का target तो बच्चे होते हैं. Every mother knows this. So Yes. that got controlled. It gave, that course gave a new meaning to my life. That course gave a new, it showed me a new rasta, a new journey, a new way to look at life, which I was not aware of. I know all the faculties at Cornash must be very irritated by me because I used to ask a lot of questions. Because I was not aware of these terms, I was not aware of certain things. I was not. बट वो जो एक डर्थ होता है ना नॉलेज का कि मुझे समझना है ये क्या होता है, मुझे समझना है. तो आई डिड एवरीथिंग दैट आई कुड इन ऑल पॉसिबल वेज टू गेन नॉलेज. Read lots of books, followed my faculties.
understood things, did a lot of extra courses, 2 day workshop, 3 day workshop, कुछ नया नया चीज सीखने के लिए. एंड देन हिम्मत आया जब लोग मेरे पास आने लगे एज अ काउंसलर. बहुत डर डर के मैंने लिया, बिकॉज प्लेइंग विद पीपल्स मेंटल हेल्थ is Hmm. not right. So I did not want to do that. I did not know whether I had that skill in me that I can help people. But when I started getting feedback from my clients, I was helped, I liked it, and I'm easy now, I'm happy now. So it gave me that confidence. Then I slowly and very slowly I stepped into the field. It took me a long time to get that confidence, because validation was very important for me. I can understand that. सरोज जी, लाइक आज के डेट में अगर किसी को बोलते हैं कि किसी मेंटल हेल्थ के लिए काउंसलर से मिलो या थेरेपी लो, तो एक स्टिग्मा है कि मैं पागल हूँ क्या जो मैं जाके थेरेपी लूँ या फिर काउंसलर से बात करूँ. जब तक वो एंजाइटी या पैनिक अटैक या डिप्रेशन का स्टेज नहीं आता है, लोग Hmm, जाते ही नहीं है. absolutely. हाउ टू आइडेंटिफाई द स्टेज कि इस टाइम पे यू नीड टू टॉक टू एन एक्सपर्ट. See, काउंसलर के पास जाने के लिए कोई स्टेज नहीं होता है. अगर आप जरा सी भी डिफिकल्टी में हो, आप किसी भी तरह के सिचुएशन में फंसे हो, आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, काउंसलर इज द ओनली हेल्प. लोगों को ना बहुत मिथ है प्रीतिका कि काउंसलर के पास जाओगे आपको 100 ज्ञान दे देगा, आपको बहुत सारी सजेशंस दे देगा, बहुत सारे एडवाइसेस दे देगा. आज के जमाने में ज्ञान कोई नहीं लेना चाहता, और काउंसलर्स ज्ञान नहीं देते हैं. ये बहुत बड़ा मिथ है. काउंसलर्स के पास स्किल्स होते हैं. जो काउंसलर्स आपको उन स्किल्स के थ्रू दे टेक यू ऑन एन इंट्रोस्पेक्टिव जर्नी. दे मेक यू इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, दे मेक यू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू. सबसे बड़ी बात है कि काउंसलर आपको एक ऐसा विंडो देते हैं, एक ऐसा स्पेस देते हैं जहां आप खुल के बात कर सकते हो. सो व्हाट आई डू विद माय क्लाइंट, सपोज अ मदर कॉल्स मी एंड सेज कि मेरा बेटा, मुझे पता है बहुत डिफिकल्टी में है, पर वो मुझे कुछ नहीं बताता, तो मैं उसको आपके पास कैसे लाऊं. तो ऐसे जब तक आपका बेटा मेरे पास आने के लिए रेडी नहीं होगा, तब तक मैं उसको हेल्प नहीं कर पाऊंगी. आप जबरदस्ती उसको नहीं कर सकते हो. तो बोले तो मैं क्या करूं. बोले आप एक फोन कॉल मुझे करवा दो, सिर्फ एक फोन कॉल करवा दो. फिर फोन कॉल पे मैं उस बच्चे को ये समझाती हूँ हाउ डज काउंसलिंग वर्क. तब वो बच्चा मेरे पास रेडी आता है, दौड़ दौड़ के आता है. when he gets this knowledge how counseling works, क्योंकि हमारे सोसाइटी में, as you rightly said, counseling is a stigma. काउंसलिंग को लोग एकदम भी वैल्यू नहीं करते. दे फील ये हम लोगों को सिर्फ हम लोग जाएंगे, ज्ञान मिलेगा और हम लोग पैसे दे के आ जाएंगे. बट इट्स नॉट दैट. इट्स शेयर हार्ड वर्क ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट्स. द क्लाइंट्स हैव टू वर्क वेरी हार्ड. तो जिनको जरूरत होती है उनका कोई स्टेज नहीं होता. Hmm. Even people have come to me for the smallest reason. Yeah, I don't know why I am sad today. They call me up. Okay, Saroji, I'm very, very sad today. So what to do? So I make her go through things. Ki what can be the reasons for your sadness? What are the thoughts that are coming to your mind? Then she realizes this. Then how to change that? So counseling can help you in every point of your life, in every situation. Just it depends. You have to have confidence on your therapist. Okay, since you talk to, I think, all age group. Absolutely. So which age group is like, ज्यादा लोग कौन से एज ग्रुप के आपके पास आते हैं? See, since I have been a school counselor for a year, I have had experience more with teenage students Okay. from the age of, say, 13 till 20. I have had premarital counseling. I have done relationship counseling. I have been trained in these counselings. So I have done relationship counselings, premarital counselings, couple counselings. So there are lots of different ways. But a therapy doesn't fall for one particular client. No, we follow an eclectic approach.
कि आज मैं अगर रिलेशनशिप काउंसलिंग फॉलो कर रही हूँ, टुमारो आई माइट फील दैट आई नीड टू डू सीबीटी विद द सेम क्लाइंट. So it is actually an eclectic approach that we follow. But mostly I have been dealing with uh, students or children, you can say. Okay, you I just have even mentioned. worked with bank managers. I have even worked with people in Singapore who are working in all bade bade MNCs. I've even worked with the colonel and his wife. Oh, okay. So I have had diverse fields, and I'm sure if they're listening to me, I'm very sure that I don't know what feedback they have, but I'm blessed to have them as a client, and I hope I have helped them in some way or the other. Absolutely. Saroji, you were just talking about that you have talked a lot with teenagers. Yes. सो बहुत कॉमनली ये दिखता है कि जैसे बच्चे धीरे टीनेज में एंटर करते हैं, वो Hmm. पेरेंट्स से धीरे धीरे दूर होते चले जाते हैं. बहुत कॉमनली सुनने में आता है. आई हैव नॉट येट एक्सपीरियंस्ड इट, बट बहुत जल्दी करूंगी. सो आई विल टॉक मोर विथ एक्सपीरियंस, बट आई हैव हर्ड इट अ लॉट कि बच्चे That shows दूर your होते जाते interest in this. That shows your interest in. हैं. सो See, this is किड्स a किड माय क्वेश्चन इज कि हम लोग पेरेंट्स के मुंह से ही बहुत सुनते हैं कि बच्चों को तुमसे कोई मतलब नहीं रहेगा, बड़े हो जाएंगे तो वो लोग अपनी दुनिया में बिजी रहेंगे, तुम अपने में रहोगे. मैं आपसे जानना चाहती हूँ बच्चों का पर्सपेक्टिव, बिकॉज दे केम एंड टॉक टू यू. वी डोंट नो व्हाट द किड्स गो थ्रू एंड व्हाई दे हैव स्टार्ट डिस्कनेक्टिंग विद द पेरेंट्स. प्लीज see, एक्सपैंड ऑन दैट. this is a psychological. What do we say? I'm forgetting that term. We have this term in psychology in which we say this. There is the cycle of growth. तो हम लोगों के साइकिल वो पर्टिकुलर एक पीरियड आता है जब बच्चे के हार्मोन्स चेंज होते हैं एंड बच्चे अपने पेरेंट्स को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझने लगते हैं. वी वोंट से दुश्मन, आई विल नॉट यूज दैट वर्ड, बट एंटी समझने लगते हैं बिकॉज द चाइल्ड फील्स दैट आई एम नाउ ग्रोन एंड द पेरेंट्स स्टार्ट पुटिंग प्रेशर ऑन देम. तुम पढ़ो, तुम इतने बजे से इतने बजे पढ़ो, ये खाना है, तुमको यहाँ जाना है, अब पार्टी में जाना है तो तुमको जाना ही है, तुमको ये कपड़े पहने, तुमको ऐसे उठना है, ऐसे बैठना है, बेटा नमस्ते करो, बेटा हाय करो, अंकल को पोयम सुनाओ. ये सब बोलने से क्या होता है ना, बच्चे फील दैट दे आर ट्रीटिंग मी लाइक अ किड. मेनी टाइम्स इट सो हैपेंस कि आज का जनरेशन इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैड फेस्ड विद आवर चिल्ड्रन. So nowadays generation gap is of 5 years only, right? So बच्चे लोगों के ऊपर हम लोग जो डिसिप्लिन डालने की कोशिश करते हैं वो डिसिप्लिन बहुत बार थोड़ा सा ओवर हो जाता है, जिससे बच्चों के ऊपर एक प्रेशर फील होता है. एंड दिस पर्टिकुलर एज एवरी पेरेंट वांट्स देयर चाइल्ड टू एक्सेल इन एवरी एग्जाम, टू एक्सेल इन एवरी फील्ड, टू एक्सेल इन स्पोर्ट्स, टू एक्सेल इन डांस. देखो उसका बच्चा ये करता है, तुम लोग कुछ नहीं करते हो. देखो वो बच्चा इतना पढ़ने में अच्छा है, तुम नहीं पढ़ते हो. देखो वो बच्चा कितना अच्छा डांस करता है, तुम डांस में कर स्कूल में डाल दो. देयर इज सो मच ऑफ कंपैरिजन parents ka with their friends, with their siblings, with their cousins. They don't even think before saying this to the child. So the child starts feeling those pressures on them. And the first sentence, I have I have attended to more than 300, 400 children, and 50% have told me first sentence, I hate my parents. And the reason was this comparison. So the message I want you to give through this podcast is respect your child. There are ways of teaching them things instead of comparing. जमाना बदल रहा है. वो हम लोग वाला जमाना नहीं था बच्चे को 2 थप्पड़ मारे बच्चा लाइन पे आ गया. अब आप अगर आज के पेरेंट को ये समझाना चाहोगे तो पेरेंट्स नहीं समझेंगे. वो यही बोलते हम तो थप्पड़ खा खा के बड़े हुए हैं, तो हम अगर अपने बच्चे को थप्पड़ मार के सिखाना चाहें तो क्या गलत है. बट जमाना बदल रहा है, तो हम अगर पेरेंट्स थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव लाएं तो आई थिंक बच्चे एंड पेरेंट्स के बीच की दूरियां थोड़ी कम हो सकती. एंड पेरेंट्स ऐसा नहीं है द चिल्ड्रन डोंट लव देयर पेरेंट्स. वो साइकिल ऐसा है, व्हेन दे कम ओवर दे जस्ट ग्रो बियॉन्ड देयर टीन्स, they will start liking their parents back because they will now understand what their parents wanted to tell them. बट वो परसेंटेज भी बहुत कम होता है.
वो परसेंटेज बहुत कम होता है, वो जो कंपैरिजंस रहते हैं वो बच्चों के अंदर रह जाते हैं। ओके, आप अभी तो हमने टीनेजर्स का पर्सपेक्टिव देखा। एज अ हम्म। पेरेंट भी आई थिंक वो बहुत लेफ्ट आउट फील करते होंगे। कुछ टाइम पहले तक बच्चा पूरा मेरे पे डिपेंडेंट था, हर चीज मम्मा मम्मा मम्मा, और अब सब कुछ उसको खुद से करना है, पूछता भी नहीं है आजकल ये हाँ, वो। तो हाउ शुड द पेरेंट कोप विद दैट? देखो, आई हैव बीन थ्रू दिस सिचुएशन, बट दिस इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर एवरी पेरेंट. This was one thing that I was taught during my learning days in Cornash, attachment with detachment. ओके। हम लोग इतना ज्यादा अटैच हो जाते थे, मैं इस टर्म का मतलब नहीं समझ पाती थी. मैं हर बार अपनी फैकल्टी को यही बोलती थी, मैं इसका मतलब नहीं समझती. बट आज जब मेरे बच्चे ड्रिफ्ट हो रहे हैं, माई सन इज सेटल्ड इन सिंगापुर नाउ, माई डॉटर इज गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, सो नाउ आई एम फीलिंग दिस दैट डर्थ मेरे बच्चों की, जो मेरे बच्चे मेरे संग रहते थे, एवरीथिंग आई वॉज बीन आस्क्ड फॉर, एवरीथिंग, वो चीज अब खत्म हो रही है. सो नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ दिस टर्म अटैचमेंट विद डिटैचमेंट. हम लोग अगर शुरू शुरू में ही इतना ज्यादा बच्चों को अपना अपना कार्यस्थल बना लेते हैं, हर चीज बच्चों के चारों तरफ घूमती है, और हम लोग अपने लिए समय नहीं निकालते, अपनी हॉबीज को छोड़ देते हैं, हम लोग अपनी लाइक्स डिसलाइक्स सबको साइड रख देते हैं, अपनी प्रायोरिटीज को साइड रख देते हैं, सिर्फ बच्चा 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 करते हैं, तो हम लोग इन चीजों को साथ तकलीफ पाते हैं. बट अगर आप थोड़ा सा समय, इफ यू गिव्स अ लिटिल बिट ऑफ मी टाइम, कि नहीं बच्चा, मैं अभी किताब पढ़ रही हूँ, आई एम रीडिंग राइट नाउ, so even you start reading with me or you go and play, but give me this time. Just 5 minutes, 10 minutes of a day will make you in this practice of giving some time to your own self. मैं बहुत लेट सीखी, तो मैं ये यंग पेरेंट्स को सिखाना चाहती हूँ, एंड मैं बहुत लोगों को सिखाती भी हूँ. अटैचमेंट विथ With डिटैचमेंट. detachment. यस. That's a beautiful saying. I will also remember it. Attachment यस. with detachment. यस. ओके, क्योंकि आपने जैसे बोला कि धीरे धीरे बच्चे डिटैच हों, हम लोग को सीखना पड़ेगा ये चीज डिटैच होना. विथ अटैचमेंट वी हैव टू लर्न द डिटैचमेंट. सो यस. कैन वी से कि द मदर्स शुड कीप देमसेल्व्स बिजी, और कोई और चीज में इन्वॉल्व रखना जरूरी होता है? व्हाई व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट कि पहले स्टेज से ही ऐसा करना शुरू कर दो? देखो, आई टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस. मैंने नहीं किया. मैं पूरे टाइम अपने बच्चों को मैंने पूरा टाइम दिया घर में. I learned a lot of things. I did computer courses. I did everything when my child was in school. But when my child was around, I was always at home for them, with them. लेकिन मुझे अब ये लग रहा है कि मैं इतना अटैच्ड हो गई अपने बच्चों से कि अब अपने बच्चों को, वो तो दे विल फ्लाई आउट ऑफ देयर नेस्ट ना. दिस इज ह्यूमन साइकिल. बच्चे तो यस. उड़ेंगे ही घोंसलों से. उसके लिए मुझे इतनी तकलीफ नहीं होनी चाहिए. राइट. तो इस चीज को माइंड में रख के मुझे अब लगता है कि अगर मैं कुछ समय अपने लिए देती, आई वुड हैव लर्न टू डिटैच विद अटैचमेंट. तो अब मैं ये चीज अब हर पेरेंट को सिखाना चाहूंगी कि आप जरूर, बच्चे तो हमारी जान होते हैं, हस्बैंड हमारी जान है, हमारे बड़े हमारी जान है, उनका हर चीज हमको देखभाल करना चाहिए, पर खुद को भी करनी, कुछ समय अपने लिए जरूर निकालें. अपनी हॉबीज को फॉलो कीजिए. मैं ये नहीं बोलूंगी सब बिजनेस में उतरो, जो सक सकते हो आप लोग काम करो, जो नहीं सक सकते, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, जो हाउस में रहना चाहते हो, want to be caretakers, do your duties along with taking care of yourself, prioritizing yourself and loving yourself. हम्म. वो हम लोग छोटे थे ना, हम लोगों को सिखाया जाता था खाने से ज्यादा मजा खिलाने में है, तो हम लोगों ने पूरा जीवन खिलाने में ही दे दिया, है ना. थोड़ा खाना सीखिए. गॉट I योर पॉइंट. I remember when I got married and I was so attached to my family कि मेरा पूरा टाइम फैमिली फैमिली में जाता था. अम्मा पिताजी भैया भाभी बच्चे बच्चे, इधर मेरे भाई बाप, एवरी टाइम फैमिली, हस्बैंड फैमिली. तो मेरे हस्बैंड हमेशा हमको एक बात बोलते थे, तुम सबके लिए एप्पल काटती हो तो एक पांच तुम भी खाओ. हम्म. बट उस समय मैंने इतनी बुद्धि नहीं थी. बट जब आज आज मैंने ये सीख ले ली है, तो आई वॉन्ट टू share my experience
Attachment with detachment. वंडरफुल. लेट्स गो इन स्टेजेस. हमने बच्चों की बात की, टीनेजर्स की बात की. अब बात आती है कि प्री मैरिटल काउंसलिंग. Absolutely. व्हाई इज दैट इम्पोर्टेंट? See, इसका दो रीजन होता है, बच्चों की तरफ से एंड इवन पेरेंट्स की तरफ से. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद चिल्ड्रन फर्स्ट. बच्चे जो एक नई शादीशुदा जिंदगी स्टार्ट करने जाते हैं, वेदर इट्स लव, लेट्स डिवाइड दीज टू अगेन, लव मैरिज, अरेंज्ड मैरिज. आजकल के बच्चे जैसे कि लव मैरिज इज मोर, इट्स बेटर. जो हम लोग वी नो ईच अदर बचपन से, मतलब एवरीथिंग वी नो अबाउट एवरीथिंग. बट जब वो उस रोल में जाते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, बिकॉज when you are with each other for some time, you people always put your best thing forward. हाँ, आप जितने भी ओपन हो जाओ, मेनी टाइम्स जो टीवी सीरियल्स में देखते हैं, आजकल वेब सीरीज चलती है, यू आर सो ओपन अबाउट ईच अदर, यू आर लिविंग टुगेदर, बट स्टिल देयर इज अ फसाद. बट जब आप शादीशुदा, शादी हो जाती है एंड जब आप चाहते हो, सो देर आर लिटिल कॉन्फ्लिक्ट्स, देर आर एक्सपेक्टेशंस, there are validations, there are, you need approval from your family, from your friends, from your husband, from your partner. बहुत बहुत छोटी छोटी बातों को लेके कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाती है, जिसको हम लोग इतना बड़ा कर लेते हैं. सबसे बड़ा होता है एक्सपेक्टेशंस. आज लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. हम लोग इंडियन फैमिलीज में है, राइट? इंडियन फैमिलीज में व्हाट हैपेंस व्हेन वी गेट मैरिड, हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि आई विल बी द बहू ऑफ दैट फैमिली एंड आई बी ट्रीटेड लाइक अ बहू. बट उसके साथ जो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, उसकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम होती है. आई एम टॉकिंग अबाउट ब्राइड्स राइट नाउ, राइट? तो उसकी जब जाके उनके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, वो कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं. नाउ कम टू द बॉयज. यहाँ हम बोलेंगे पेरेंट्स की थोड़ी गलती होती है. जो लड़कियों को तो हम सिखा देते हैं हाउ टू कोप, वी टीच देम ऑल लाइफ स्किल्स, बट अभी भी हम लोग अपने बॉयज को नहीं सिखाते हैं. सो द बॉयज, दे हैव ऑलवेज सीन देयर पेरेंट्स ट्रीटेड लाइक अ फादर, लाइक अ हस्बैंड. सो वो एक्सपेक्टेशन की, एंड गर्ल्स एक्सपेक्ट मैं भी वर्किंग, वो भी वर्किंग है, तो मिलके करेंगे. तो देर आर स्टिल अ परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर नॉट इनटू दिस. एंड बहुत जगह मैंने ये भी देखा है, जो मेरे पास कुछ क्लाइंट्स आए हैं, जिसमें पेरेंट्स बोलते हैं, अरे ये क्यों काम करेगा, तुम थक के आई हो, तुम इसको गर्म खाना परोसो. सो दीज छोटा छोटा कॉन्फ्लिक्ट्स जो पहले नहीं था, तो हम लोग प्री मैरिटल काउंसलिंग में वी मेक द कपल सिट टुगेदर, द टू बी कपल सिट टुगेदर, एंड तुम लोग के एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट मैरिज. देखो, दोनों की अपब्रिंगिंग अलग होती है, दोनों के वैल्यू सिस्टम्स अलग होते हैं, दोनों के थॉट प्रोसेसेस अलग होते हैं, तो उनको एक कॉमन पेज पे कैसे लाया जाए. There are certain things which a boy or a girl might not be able to convey openly to her or his partner. तो उसको हम लोग कॉमन पेज पे लाते हैं थ्रू म्यूचुअल डिस्कशंस. And one more thing about counseling is that we just don't make them introspect, and we just don't make them go through things. We psycho-educate them also. We teach them skills. We teach them conflict resolution skills. We teach them communication skills. We teach them how to build relationships, how to work on your relationships, so that you don't have to run to the counselor every time you're in a problem. Right. So these skills, it is also a learning process, but the clients need to have patience for that. हमारे समाज में वो patience नहीं है. You say when you began this answer, you said love marriage or arranged marriage को अलग-अलग रखो. Why the difference? How can you please explain? See, love marriage with the boy and the girl, they know each other very well for maybe however long. Okay, but arranged marriage is a totally a different thing. There is, you get to know each other after engagement. Yeah, maybe a few months before engagement, before this. So उनको काउंसलिंग अलग तरीके से करते हैं. जो लव बर्ड्स हैं उनको काउंसलिंग अलग तरीके से करते हैं. इनकी थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए होता है बिकॉज दे ऑलरेडी डोंट नो ईच अदर. So there are certain things which
which might not be conveyed to each other, their expectations from the marriage, their how the main thing that we want to bring on the same page is how is the finances and the household work going to be divided. आज के जमाने में ये सबसे important है. Right. There is also a lot of debate you can say going on कि आजकल का generation बोलता है कि how is it possible कि if I don't know someone I can marry that person. Absolutely. हाँ, पहले इतना नहीं था, अरेंज मैरिज अभी भी होते हैं, ऐसा नहीं है, बट इट्स लाइक शॉकिंग वाला रिएक्शन मिलता है, कैसे हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता. हाँ. So would you like to say something about that कि why arranged marriages can be successful as well? See, marriage is again an institution of companionship, right? It is an institution of trust. It is an institution of confidence, right? So when love marriage, maybe there are certain things which is not visible. Isme bhi there are certain things arranged marriage mein which are not visible. So you have to, it is a gamble. अब आप ये बोलोगे कि अरेंज मैरिजेस में डिवोर्सेस होते हैं तो क्या लव मैरिजेस में नहीं होते हैं? होते हैं. So it is again the lack of skills that I told you. Conflict resolution skills, then communication skills, relationship management skills, understanding how the other person behaves in that particular situation and how to handle it. Suppose a person is a very aggressive person. मुझे पता है मेरे हस्बैंड को बहुत गुस्सा आता है, तो उस सिचुएशन पे मुझे उनको कैसे हैंडल करना है, ये हम लोग काउंसलिंग सेशंस में सिखाते हैं. If you are desperately in love with that person, you will learn how to handle that person, right? जिंदगी में हर चीज को छोड़ना बहुत आसान है, बट उस चीज को जोड़े रखने में बहुत मेहनत लगती है. कैन वी ऑल्सो से कि जैसे आपने बोला किसी के हस्बैंड को, पार्टनर को गुस्सा आता है, और सम अदर काइंड ऑफ ऑपोजिट है, जस्ट एन एग्जाम्पल, इसी तरह से कोई बिल्कुल ऑपोजिट नेचर के है कोई चीज को लेके, सो नॉट ऑल पीपल गो एंड सीक काउंसलिंग. Absolutely, they don't. Yeah, if they don't and they keep like अपने घुटते because opposite nature है, there will be clashes of course. Absolutely. So will it lead to anxiety or depression or that kind of thing? It does. So that marriage counseling is really important for that. Yes, आज के ज़माने में premarital counseling is an absolute necessity. It will help young couples in their marriages in long term to live happily instead of going through that stress periods. जब मैं तुमसे बात नहीं करती हूँ, 3 दिन हो गए, they're not speaking to each other. Instead of that, they can learn how to speak assertively. They can be mindful कि अरे चलो उसके ये trigger start हो रहे, that means he's going to now shout, so we can keep them calm at that moment. So ये skills, छोटी skills. Suppose I talked about aggressive. A person might be opposite also. कि उसको गुस्सा आ रहा है लेकिन वो इतना शांत हो जाएगा कि वो 2 दिन तक बोलेगा, राइट? तो उसको कैसे हैंडल करना है? That person might be passive aggressive also, right? Like we listen all the time कि इनको कभी गुस्सा आता ही नहीं, और आता है तो ऐसा आता है कि हम लोग चुप हो जाते हैं. हाँ, right? We listen it all the time. तो वो passive, and बहुत लोग ऐसे होते हैं, I will not be gender specific here, but बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ना गुस्सा आता है, suppose किसी के ऊपर गुस्सा आया, and instead of taking it out, they go and talk behind the back and gossiping, and उसके बारे में सारा उल्टा पुल्टा हर समय बात करना. So what is happening to your life? You are losing your brain. आपका ही तो खून जल रहा है, सामने वाले को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा. So handling these situations always helps. इंडिया में शादी कभी भी 2 लोग के बीच में नहीं होती है, 2 परिवारों के बीच में होती है, मानो या ना मानो. Absolutely. मानो या ना मानो, parents are always there, your sisters, brothers will always be there. So why not get happily, step into that institution very happily, understanding your partner and handling those situations, learning these chota skills. Okay, communication skill, it's the most important skill, not only for premarital counseling, for every person. Everybody. Every person.
या मेरे और मेरे हस्बैंड का कभी झगड़ा होता है ना, तो वो हमसे यही बोलेंगे, मैं तुम्हारी तरह सजा धजा के नहीं बोल सकता। बट दिस इज द स्किल दैट आई हैव. यस. I don't want to get into that aggression mode. So this ओके. is the skill I have. यू जस्ट टॉक्ड अबाउट लाइक हम लोग एंगर इश्यूज के बारे में बात Mm. कर रहे थे. सो लेट्स गेट बिट इनटू इट कि गुस्सा एक ऐसा चीज है जो सबको आता है. Absolutely. देर आर डिफरेंट It is वेज a पीपल it is a एक्सप्रेस very इट. normal. It is a very normal emotion. वेरी नॉर्मल थिंग एंड देर आर Very normal डिफरेंट वेज emotion. हाउ पीपल एक्सप्रेस इट. एज Absolutely. यू सेड, कोई बिल्कुल चुप हो जाता है, कोई हाँ. अपना अग्रेशन निकालता है. Mm. सो व्हेन जब गुस्सा आता है उस टाइम क्या करना चाहिए? See, it all depends upon the person, हम्म. the situation. गुस्सा आना, हम लोग हमेशा उसको एक नेगेटिव इमोशन समझते हैं, बट गुस्सा हर बार नेगेटिव नहीं होता. गुस्सा हर बहुत बार पॉजिटिव भी होता है. आज हम बच्चे पे गुस्सा करते हैं तो पढ़ाई नहीं करते हो तो वो ठीक पढ़ने बैठ जाता है. दैट इज अ पॉजिटिव गुस्सा. लेकिन अगर हम गुस्से में आके बर्तन तोड़ फोड़ रहे हैं या किसी को मार रहे हैं, दैट इज अ नेगेटिव गुस्सा. अगर आप नेगेटिव मोड में हो एंड इफ यू फील कि हाँ हमको कुछ करना है इसके बारे में एंड यू आर अवेयर ऑफ दिस, एंड द बेस्ट थिंग दैट आई वुड वांट टू से, इफ यू वांट टू चेंज योरसेल्फ, then there are certain things that a person should. First of all is recognize your trigger points. मैं किस चीज से ट्रिगर होता हूँ? अगर आप कोई पर्टिकुलर सेंटेंस से होते हो या पर्टिकुलर सिचुएशन से होते हो, पर्टिकुलर पर्सन से होते हो, तो आप अगर वो रिकग्नाइज कर लेते हो कि अच्छा वो फलाना पार्टी में घुसा है, मेरे मुझे तो वो उल्टा सीधा बोलेंगे एंड आई फ्लेयर अप. इफ यू स्टार्ट रिकग्नाइजिंग these triggers, you can remove yourself from that place. हम्म. है ना? आपको पता है कि अब घर में आज सब्जी अच्छी नहीं बनी है और हम्म. मुझे अब गुस्सा आएगा. इफ यू रिकॉग्नाइज दिस ट्रिगर कि अरे लौकी की सब्जी आज फिर बन गई. See, these are very हाँ. hypothetical यस examples. यस 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 यस. आज फिर लौकी की सब्जी और दाल बन गई, मुझे तो पास्ता खाना था. वेरी वेरी छोटा सा चीज या बच्चे या. के लिए. तो हम्म. इंस्टेड ऑफ स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, अगर वो एक सिंपली ऑर्डर इन कर ले या मम्मी को बोल दे मम्मी आलू बना दो मैं खा लूंगा, इंस्टेड ऑफ स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग. बट ही हैज टू रिकॉग्नाइज हिज ट्रिगर्स फर्स्ट. हम्म. है ना? अगर एक इंसान अपने ट्रिगर्स को रिकॉग्नाइज कर लेता है हम्म. एंड देन उसके अंदर चाहत होगी कि आई हैव टू कंट्रोल माई एंगर बिकॉज दिस इज मेकिंग माई एटमोसफियर वेरी नेगेटिव, then he has lots of tricks and tips to it. He can remove himself from that place. He can put on earphones and listen to music. या टीवी देख सकते हैं, बुक पढ़ सकते हैं. यू कैन काउंट टिल 10. जो थोड़े स्पिरिचुअल है वो पूजा करने बैठ सकते हैं. वट एवर यू हैव टू फाइंड योर ओन वेज टू डील इट. Okay, if let's say you, as you said कि we have to find, अगर किसी को अवेयरनेस है कि हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है तब मुझे इस तरह के कुछ, that's a I think the perfect scenario we can think of. But what if कि वो तो अपने आप को कंट्रोल कर रहा है, बट हाँ. उसका जो सराउंडिंग है वो बहुत टॉक्सिक है, वो अपने फैमिली को, अपने परिवार को, अपने घर को तो छोड़ के नहीं जा सकता. एब्सोल्युटली. उसको क्या करना चाहिए? अगर उसकी फैमिली टॉक्सिक है, हम्म. सपोज उसकी फैमिली में कुछ लोग टॉक्सिक है, सो वी देन टीच देम हाउ टू हैंडल दैट टॉक्सिसिटी. ओके. वी डोंट टीच, वी कैन नॉट गो एंड उसकी फैमिली को तो हम चेंज नहीं कर सकते ना. हमारे पास जो आएंगे मैं तो उसको स्किल सिखा सकती, राइट? सो देन वी टीच देम हाउ टू हैंडल द टॉक्सिसिटी. हम्म. लाइक सपोज एक again, since we are on a platform where two women are talking, देवरानी जेठानी का ही ले लेते. सपोज दोनों में से एक जन बहुत टॉक्सिक है, सो वी नीड टू क्रिएट दैट बाउंड्री. वी टीच देम हाउ टू क्रिएट अ बाउंड्री. हम लोग क्या है ना, अपने घर की बाउंड्री बनाते हैं, सब करते हैं, लेकिन हम लोग अपने कम्युनिकेशन की बाउंड्री नहीं बनाते, अपने एक इमोशनल वॉल नहीं बनाते. सो वी टीच देम हाउ टू सेट बाउंड्रीज हम्म. एंड देन हाउ टू बी असर्टिव कि तुमने ये बोला मुझे अच्छा नहीं लगा, instead of going into that tiff and shouting and screaming on each other. So these are little life skills that we teach. You know, Pritika, what I feel, जब हम लोग छोटे थे, when we were into lower classes and studying, हम लोग की सब्जेक्ट होता था moral science. हम्म. इसमें हम लोगों को वैल्यूज सिखाए जाते थे.
But what I feel कि there should be one more subject for life skills, जो आजकल के बच्चों को सिखानी चाहिए. कि मॉरल्स तो संस्कार तो फैमिली वाले डाल ही देते हम्म. हैं. बट लाइफ स्किल्स बहुत जरूरी है. बहुत एक जरूरी है. एडिशनल सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए. Because ओके. this is what we are missing. हम्म. Communication skills. सरोजी, लेट्स टॉक अबाउट न्यू मदर्स. जैसे कि शादी एक नया बड़ा चीज होता है जिंदगी में, वैसे ही माँ बनना भी एक बहुत बड़ा चीज होता है. पापा बनना भी, बोथ दोनों वो के लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आता है. हाँ, बट it's more on mother because of course the mother is taking care of the child most of the time, and emotional connection and all that is absolutely involved. So I don't know the word, but what do we say? postpartum. Postpartum, yes. Yeah, it's Ha, postpartum. yes, I forgot the word. So how to No, deal but with that? see, isn't it very natural for a mother जो अभी तक she was a free lady, थोड़ी बहुत responsibilities थी, all of a sudden 9 months के लिए many of them are falling sick, medications, everything. It is very natural for a person to go into that negative mood. And फिर all of a sudden that bundle of baby in her hands, उसको फीड कराना है, उसको देखना है, बहुत प्यार आता है बच्चे पे, बहुत प्यार आता है बच्चे के साथ, वो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. Yes. जो जो मदर एकदम फ्री बर्ड थी, जॉब करती थी, ऑल ऑफ अ सडन शी स्टक टू द हाउस. हम लोग के इंडियन समाज में तो आके लोग बेटे पैसे पकड़ो, इतने ज्ञान दे के जाते हैं. एवरी टाइम यू हियर अ न्यू थिंग फ्रॉम एनीबडी. आजकल की फ्री सोसाइटी में थोड़ा डिफिकल्ट तो होता है मदर्स की, राइट? एंड इट इज वेरी नेचुरल टू गो इनटू पोस्टपार्टम डिप्रेशन व्हिच इज फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम. बट उस समय हम लोग अगेन वी टीच द पेरेंट्स, द मदर्स, हाउ टू डील विद इट. अगेन टू सेट बाउंड्रीज. द फैमिली हैज टू बी वेरी कोऑपरेटिव दैट टाइम टू अंडरस्टैंड कि वो गुस्सा कर रही है, वो इरिटेटेड हो रही है, रात रात भर जाग रही है, डाइपर्स पे डाइपर्स बदल रही है, कितनी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके पास आ जाती. बच्चे को टाइम से फीड करना है, बैठे रहना है, घंटों बैठे रहना है, रात भर नींद नहीं आती. तो वहां अगर फैमिली थोड़ी सपोर्टिव हो जाती है तो न्यू मदर्स को बहुत आराम हो जाता है. Another thing that I want to bring into light कि postpartum सिर्फ मदर्स को नहीं होता, न्यू फादर्स को भी फादर्स होता. को भी होते हैं. या. We don't use the word postpartum for that, but they also go into this additional responsibility का भार, what we call. एकदम न्यूबॉर्न बेबी का ध्यान रखने में आई थिंक इफ द फैमिली और फैमिली गिव्स मोर सपोर्ट, एडिशनल हेल्प, हम एडिशनल हेल्प ले लेते हैं, उन हेल्प से हम लोगों को बहुत आराम होता है. एंड सबसे ज्यादा अगर अगर न्यू मदर फ्रस्ट्रेटेड हो रही है, थोड़ा पेशेंस रख लीजिए. स्लोली एंड स्टेडीली शी विल कम आउट ऑफ इट. फिर हम काउंसलर तो है ही. मतलब अंडरस्टैंडिंग फैमिली इज द की टू डील विद इट. या. एब्सोल्युटली. पेशेंस, लव. सरोज जी, एक एक और चीज है जो बहुत कॉमनली न्यू मदर्स लोग परेशान रहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत चंचल है, मेरा बच्चा इतना नॉटी है कि आप सोच नहीं सकते. सबको लगता है मेरे बच्चे से ज्यादा नॉटी कोई हो ही नहीं सकता. डू यू हैव एनीथिंग टू से अबाउट इट? आजकल जो मेंटल हेल्थ के कुछ टर्म्स या कुछ मेंटल हेल्थ के कुछ डिसऑर्डर्स इतने ओपन हो रहे हैं हर जगह, एवरीबडी नोज अबाउट एवरीथिंग, एंड देयर इज दिस गूगल बाबा. हाँ, राइट. तो थोड़ा भी बच्चा थोड़ा एक्स्ट्रा चंचल होता है ना, पेरेंट्स की मेरे बच्चे को तो ADHD, राइट, मेरा बच्चा इतना ज्यादा चंचल है, इतना बोलता है. बट एवरी चाइल्ड डज नॉट हैव ADHD. आई रिमेम्बर मेरे पास एक 4-year-old मदर आई. 4-year-old मदर. Imagine a 4-year-old mother. Yes, children do have ADHD, but she did not have any of the symptoms. Oh. She did not have any of the symptoms. Symptoms तो हम लोग तो पहचानते हैं ना, we know what the symptoms are for ADHD, but she did not have any of the symptoms. She heard सब लोग बोलते तुम्हारा बच्चा इतना चंचल है, तुम एक थेरेपिस्ट के पास ले चलो, ले आई. A new mother, even she was not aware of that. But there is a misconception कि सब बच्चे जो चंचल होते हैं सबको ये प्रॉब्लम्स होती है, बट ऐसा नहीं होता.
अगर बच्चा चंचल है तो देयर आर सर्टेन थिंग्स टू कीप इन माइंड, टू सी लुक आउट फॉर दोस सिम्टम्स एंड देन वी कैन टेक अ कॉल. थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, को समझाइए अगर Can you समझ. give some example ki what symptoms should we look for? See, I am not an expert in that, in child counseling. So I will not be the right person to say the exact symptoms. But I was talking about counselors in general. Okay, okay. Okay. All right. Yeah. There are certain things, अगर आपका, what I feel, what I have learned from my education in this field, कि अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा कुछ चीज गलत कर रहा है या कुछ चीज ज्यादा कर रहा है, if you have help, try to explain it to them, उसको समझाओ. वो फिर भी करता है, वो नहीं समझ रहा है या नहीं सुन रहा है, then there are certain more symptoms. I think it will be good if a child counselor talks about it and not me. I will not be the right person to talk. But Okay. yes, then when I told that mother to go to a certain institute with a child counselor and to get it checked. Okay. Because if this was not my field, I could not take it, right? But there have been times when I have found children to do certain things, and then when I took up the child as a school counselor, I'm talking. I have been a school counselor for a year. So LKG, UKG के बच्चे की पेरेंट्स आते थे, वो बाइट करता है. So where did you learn this from? मेरा बड़ा भाई को देखा करते. So we have to keep a track of where the child is learning these things from. Bad habit. ओके. जरूर जी, हम लोग बड़े लोगों का तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि इस टाइम पे हम लोगों को इस टाइम पे काउंसलिंग लेना चाहिए, इस टाइम लेना चाहिए, इस टाइम पे बात करना चाहिए, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए. बट व्हेन शुड वी रियलाइज कि अभी दिस इज द राइट टाइम, दैट कि मेरे बच्चे को भी जब हम लोग पेरेंट्स लोग अपने लिए ही तैयार नहीं है अभी, हम लोग बोलते हैं मैं पागल हूँ क्या, मैं डॉक्टर को क्यों दिखाऊं, मैं काउंसलिंग क्यों करूँ, तो बच्चे पे तो हम लोग और ज्यादा ये हो जाते हैं कि नहीं नहीं, बच्चे को तो बिल्कुल जरूरत ही नहीं है. And we hear a lot of cases which is very hurtful. So that thing doesn't happen with our child. उसके लिए हमें बच्चों पे क्या ऐसे चीज ध्यान रखना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ आप देख रहे हो तो प्लीज टेक एडवाइस. आई थिंक जब बच्चा अपनी नॉर्मल बिहेवियर से थोड़ा हट के बिहेव करने लगता है, नंबर 1. नंबर 2, व्हेन ही स्टॉप्स कम्युनिकेशन. ओके. विद यू बहुत कम बात करते हैं, मोनोसिलेबल्स में आपको आंसर कर रहा है, आप उसे 10 बार पूछ रहे हो, हाँ बस ठीक है ना, एवरीथिंग इज फाइन, देन शट्स द डोर. सोशली एक्टिव कम होने लगा है. पहले दिन भर फ्रेंड से बातें करता था, अब थोड़ी कम हो गई है, फोन पे दिन भर रहता है, ही डजंट हैव मेनी सोशल कॉन्टैक्ट्स. जब वो अपने नॉर्मल बिहेवियर से थोड़ा हट के धीरे धीरे दिखता है, व्हेन यू सी दीज साइंस, so you start talking to that child more, understand, build that relationship. The child will not open up, then you need to bring him to a counselor. अगर आप बच्चे को सही एम्बियंस देते हैं, आप सही एनवायरनमेंट देते हैं, सही विंडो देते हैं, तो बच्चा आपसे जरूर बात करेगा. बट क्या होते हैं ना, पेरेंट्स भी नहीं समझते हैं ना, पेरेंट्स तो पेरेंट्स होते हैं ना. अपब्रिंगिंग, जनरेशन गैप, सब ये सब टर्म्स जो हम लोग सिर्फ टर्म समझते थे, इनके मीनिंग्स होते हैं. आज I'll give you an example. I was brought up, right? My parents brought me up. My parents brought 3 brothers also up, right? But Yes. उनकी अपब्रिंगिंग, उनके संस्कार चाहे सेम होंगे, but I am younger to my elder brother by 7 or 8 years. तो उनके अपब्रिंगिंग में और मेरी अपब्रिंगिंग में भी डिफरेंस है. फर्क होगा होगा डेफिनेटली. ना. हाँ तो हाँ, आज मेरे में और मेरे बच्चों की अपब्रिंगिंग में तो डिफरेंस होगा बहुत ही. फर्क होगा. आज जो अपब्रिंगिंग में मुझे कुछ अच्छा लगा, मेरी अपब्रिंगिंग में मुझे कुछ सही नहीं लगा, तो आई विल ट्राई टू इनकलकेट दैट इन माय चाइल्ड्स अपब्रिंगिंग, सो हिज अपब्रिंगिंग विल बी अगेन डिफरेंट. सो जब सबकी अपब्रिंगिंग डिफरेंट होती है, बच्चे अपब्रिंगिंग से ज्यादा ना अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से भी सीखते हैं. whatever they are going through, whatever they're seeing, whatever they're observing,
हमेशा वर्बल मैसेजेस से नहीं सीखते, नॉन वर्बल मैसेजेस से भी बहुत कुछ सीखते हैं। एंड ये हम्म जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है वही बच्चों का सबसे बड़ा सीखने का स्रोत होता है. That is the main learning point. And parents are the biggest teachers. या And parents सोचते हैं हम बोल बोल के सिखाएंगे, नहीं, आप बोलते कुछ हो करते कुछ हो, तो जो आप करते हो बच्चा उसको भी सीख रहा है. हम्म So if you want to teach your child certain things, practice it with yourself first. आप देख बच्चे के को ज्यादा छोड़ो सीखते हैं मत, देन व्हाट वी आर टेलिंग देम टू डू. आप बच्चे को बोलते हो बॉल इसमें मत खेलो या ताश मत खेलो या कुछ मत करो, आप वही करते हो, बच्चा तो सीखेगा. इवन आई हैव टोल्ड दिस इन वन ऑफ माय वीडियोस आल्सो कि हम लोग किसी का फोन आता है बोलते बोल दो मैं घर पे नहीं हूँ. हाँ हाँ खुद बच्चे को बोल रहे हैं तुम झूठ बोल दो और फिर जब वो झूठ बोलेगा तो बोल रहे हो तुम हाँ झूठ कैसे बोल रहे हो. झूठ तो नहीं हाँ. बोलना चाहिए. नो सी देर आर स्किल्स फॉर दिस ऑल्सो. हम्म हमेशा तो हम एकदम परफेक्ट नहीं हो सकते ना, हम लोग भी ह्यूमन बींग्स है, हम्म इम्परफेक्शन हम में भी है. बट हम्म देन गिव योर चाइल्ड एन एक्सप्लेनेशन, मैंने ऐसा क्यों बोला. क्यों बोला. राइट. राइट. या झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है बेटा, लेकिन मैंने इसलिए ऐसे बोला, मेरा इसलिए. मूड नहीं था आंटी से बात करने का. तो चाइल्ड विल रियलाइज की देयर वाज अ रीजन फॉर मम्मी टू से दिस. या व्हाट वी डू इज कि वी नेवर गिव दैट चाइल्ड दैट एक्सप्लेनेशन. मैं तो हर पेरेंट जो मेरे पास आते हैं, सी all this I have not learned in my sessions. This is all through my experience, my bringing up my children. And when people tell me that your children are very well brought up, I look behind and see what have I done. I did not learn anything. This was all my, I don't know how it, but मैं हमेशा अपने बच्चों को डांटती थी, मारती थी. मैंने बहुत मारा है अपने बच्चों को. I will not deny that. My children, when they hear this, they're going to laugh aloud. But I have given them explanations for everything. ये डांट तुमको क्यों पड़ी, ये मार तुमको क्यों पड़ी. Okay. Now I feel very guilty of hitting them, because now when I see back, I said ताड़ ऐसे मार देते थे इतने छोटे छोटे बच्चों को. I'm not liking those things. Now I feel very guilty. And my children have taken this as a fun point, teasing me. बस मम्मी चप्पल बच गई आपने चप्पल से. Then I say मैंने झाड़ू भी कभी यूज नहीं किया, मैंने सिर्फ हाथ यूज किया. So this has been, leg pulling kind of a thing. Yeah, But yeah. that guilt is still there कि मैंने बच्चों को मारा. बट इट्स ओके. बट सच में कृतिका, अगर हम एक्सप्लेन कर देते हैं बच्चों को कोई भी चीज के लिए जो मैंने की है, which I know is not right, the child will not inculcate this. But for this you need to have that mindfulness, you need to have that patience. Child rearing is an art. When a person comes to a counselor, वो अपने आप को बहुत vulnerable बनाते हैं, which is not very easy. किसी के सामने vulnerable होना, अपने deep things which they might have not said to anybody till that point. Absolutely. So a great deal of trust is required in that. Absolutely. Absolutely. See what people think. Again, this is a myth. Weak people go to counselors. But the strongest of people go to counselors. Because it takes a lot of strength to talk about yourself to a stranger. It takes a lot of strength to introspect. कभी तुमने बैठ के 5 मिनट भी सोचा है कि प्रीतिका लूनिया ऐसी क्यों है? कभी 5 मिनट भी तुमने अपने बिहेवियर पे, अपने थॉट्स पे, मैं ऐसा क्यों सोचती हूँ, कभी किसी ने भी दिया है? So coming to a stranger and talking about her or his own self, it's very difficult. It's not easy. So you need that strength. I will not go into disorders, because disorders is another topic एकदम अलग से. But what I will go through is कि छोटी सी भी problem है आपके अंदर. I remember this couple had come to me for anger issues.
So the lady had come because her husband had a lot of anger issues. So I taught her how to deal with the husband ka anger and all. But when the husband came, he cried when he started talking, because he said, never has anybody asked me these questions. Why am I like this? So it needs a lot of strength to talk about oneself. So they are not weak, they're very strong. Do you think men also need counseling, but they come very less for counseling? Absolutely. There is no gender biasness in counseling. No gender biasness. Since Indian society के माहौल में women are more, I don't know that word, they are more susceptible to health. So I think I practice more of preventive mental health. डेप्थ में जाने से पहले ही सोल्यूशन कर लो. अगर आपको जरा सा भी लगता है कि आप 4 महीना हो गया यू आर वेरी डिस्टर्ब, 6 महीना हो गया यू आर वेरी डिस्टर्ब एंड यू आर सैड एंड यू फील लाइक क्राइंग, यू आर स्लीपिंग, यू आर रिमूविंग योरसेल्फ फ्रॉम सोशल सर्कल्स, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, तो कंसल्ट अ काउंसलर इंस्टेड ऑफ स्टेपिंग इनटू दैट स्पाइडर्स वेब, because it is very difficult. ओके सरोजी, हाँ, माइंडफुलनेस कैसे रखा जाए, इस पे हम लोगों को कुछ बताइए. सबसे पहले तो माइंडफुलनेस क्या होता है? Do you have any concept of mindfulness? What mindfulness is? Mindfulness, according to me, is being aware. Yes. कुछ भी करने से पहले थोड़ा सोचो. ठीक है. Just being mindful of before saying, talking, or कोई भी बात करने के पहले, कोई काम करने के पहले. ठीक है. So let's comprise all this. Okay. Right? So mindfulness is living in the present moment. Okay. Being with yourself in the present moment. Like I'm sitting here right now, but I am mindful of what Preetika is saying, how her head is moving, what are the things behind her, what am I seeing behind her. I'm mindful of my feeling. मेरे हाथ में एक clutch है अभी, जिसको मैं खोल बंद to keep my concentration. So I can feel this. I can feel the AC का ठंड feel हो रहा है मुझे. So I'm mindful of every small things around me. So this is being mindful, that being in the present moment. तो हम physical awareness की तो बात कर लिए, but मेरा inner emotional awareness, we have to be mindful of that also. अगर हमको अपना mental health strong करना है, तो mindfulness is a skill which should be practiced by everybody. It is not an inborn skill. It is a learned skill. So we hold workshops also for this. How to be more mindful. I'll give you a small example. Like we ask our participants in our workshops, we call it 5 senses ka test. Like 5 things you see, 5 things you hear, 5 things you taste, 5 things you in the present moment. 5 things you're feeling, or 3 things you're feeling, or 2 things you're. There's a process to do that. Let's not go into the details, but there is a process to do that. So उससे क्या होता है, the person will say कि मैंने क्या देखा इस रूम में, अच्छा मैंने एक पंखा में साउंड क्या सुन रहा हूँ. Most of the time you will feel that बाहर के सड़क की साउंड उनको सुनाई नहीं दे रही है. But when you ask them to hear, they'll hear. अच्छा हाँ ये आवाज तो सुनी थी, अच्छा हाँ ये जो जोर जोर से आ रही है वो सुन रही है. That is mindfulness. When you take a shower, so you feel that water falling. क्या होता है, हम लोग नहा लेते आ जाते हैं, बट वो पानी हमारे बॉडी में कहाँ गिर रहा है, what are the sensations that our body is sending to our brain, what are we feeling,
कहाँ ठंड ज्यादा लगी, कहाँ कुछ सेंसेशन टिंगलिंग हुआ. We don't feel all that, right? When we eat, मोबाइल चला रहे हैं या टीवी देख रहे हैं और खाना खा रहे हैं, कहाँ क्या टेस्ट हमको फील हुआ. दीज आर वेरी बेसिक स्टेप्स फॉर माइंडफुलनेस. When you start concentrating on what you are eating, तुम कितना बड़ा गस्सी तोड़ रहे हो रोटी का और उसको कितनी सब्जी लगा रहे हो, कितना टाइम ले रहे हो च्यू करने में, what part of the tongue your food is touching, what taste are you feeling. या और तो आई थिंक आज के डेट में जहाँ पे जब सब कुछ इतना हड़बड़ में हो रहा है, सब कुछ को जल्दी है हर चीज में, इट इज इवन मोर इम्पोर्टेंट टू बी माइंडफुल. इतना नहीं अगर आप कर सकते कि एक एक चीज को नोटिस करना, एटलीस्ट सम अवेयरनेस शुड बी देयर. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. ये जो रोड पे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, लैक ऑफ माइंडफुलनेस. या A person is jaywalking, गाड़ी मार दी, my lack of mindfulness from both the sides, right? ये तो बहुत बड़ा किस्सा हो गया. But people walking with the mobile, they are not mindful of anything around them. Their mind is totally focused on their mobiles. So mindfulness practice जरूर करना चाहिए. let's go back to relationships. It could be any relationship, माँ बेटी का, पार्टनर का, anybody, okay. अगर किसी ने हमें कुछ बोला या हमारे साथ if something wrong happened or unfairness, anything, we have to forgive the other person. Yes. वो फिर भी किया जा सकता है. But what if I'll interrupt you. Yeah, yes. See, usage of words. Yeah. You have to forgive the other person. कौन से रूल बुक में लिखा है you have to forgive? Have to forgive is a rule. Okay. So we impose these rules on ourselves. Na? Like your rule is we have to forgive the other person. Right? So instantly I got this कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत होता है तुम सबको forgive कर देती हो. But क्या तुम सबको forgive कर पाती हो? I guess so. 100% absolutely you forget about that situation. No baggages. I mostly don't take baggages. Like if अगर That's very good for particularly you. उस topic के बारे में मेरे को पूछेगा, then I'll remember and I'll say. But it never happens. मतलब ये बहुत टाइम बाद में हुआ. But हाँ. it never happens कि मैं बैठ के याद करती हूँ कि उसने मेरे साथ ऐसे किया या उसने मेरे को ऐसा बोला. Kudos to you. But do all people do this? No, even I was not there. I हाँ. have become gradually came here. So you practiced that. Yes, yes. Yes. But you still use the word I have to. Yeah. So what should be the right words? See, this is the communication skill that we teach. Yeah, yeah. So I would prefer to, we think we should, not, we shouldn't use words like should, want, need, have to, must, ought. These particular words always put, you always talk to me like this. उससे में क्या होता है, हमारा मेरे हस्बैंड से झगड़ा हो गया, you always talk to me so rudely. But does he always talk to you rudely? So these particular words always create a drift. Usage of words, ये हम लोग community, I pointed this out because I wanted to bring up this. Communication skill में हम लोग ये सब सिखाते हैं. आप तो पकड़ लिए, तुरंत ऐसे पकड़ लिया आपने. I am. And you pointed out absolutely correct. See, absolutely जो perfectionists होते हैं, we feel perfectionists are absolutely great, but are they? They are the most depressed people because उनके ऊपर इतने shoulds होते हैं. I have to be on the top. I cannot come second. I have to be the best. How can I make one mistake? I always have to excel. मतलब इतना उनके ऊपर pressure होता है. I had this child who was a perfectionist. उसको every time मतलब एक मार्क मेरा कम कैसे आया, 99 कैसे आया, मुझे 100 क्यों नहीं आया? How come I made this mistake? इतना प्रेशर उसके ऊपर, इतना प्रेशर. He cried. What if the child takes the pressure themselves? कोई पेरेंट का प्रेशर नहीं है. बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद पे लेते हैं कि मेरा ये क्यों नहीं हुआ. खुद पे भी लेते हैं और कुछ कंपैरिजंस के कारण भी बच्चों में आता है ना. This is not inbuilt. Sometimes it is genetic, yes, but sometimes it is because of the pressures that is created upon them.
Sometimes it is because of the comparisons. So in counseling sessions, we look through the source कि ये क्यों आ रहा है बच्चे में. देखो हम लोग क्या बोलते हैं, काउंसलिंग सेशंस बहुत लेंदी होते हैं. तो इन जो भी क्लाइंट आता है वो 2 3 4 करके छोड़ देता है. तो भैया बहुत लेंदी है, थोड़ा एक्सपेंसिव तो होता है. देखो, बिकॉज वी ऑल्सो वर्क वेरी हार्ड. एब्सोल्युटली इट और इज. टाइम भी अच्छा खासा देते हो. It is not only about time, it is about giving our mental space Mental, to of course. This was actually going to be one of my question कि हाँ. because you take so much of people's pain and vulnerability, हम्म. आपको भी तो कहीं ना कहीं वो ड्रेन करता होगा. How do you come out of that? So we have been taught the skill of switching on and switching off, not to carry the client's baggages to our homes. Hmm. This is also a skill that is taught in our session. Okay, You, continue. Yeah, you please. very rightly said, very rightly said ना कि मैं baggages carry नहीं करती हूँ, but it took me a long time to learn this, Yes. right? So Yes. this is also a skill, switching off and switching on. If I am in a counselor's mode, if I'm taking a session, you will find a different Saroj Agarwal. Hmm. But when I'm with friends, when I'm with other people around, I'm a different person altogether. I have seen that. So you have. We have been to a trip together. For those who don't know, she Yeah. is so much fun to be with. So that is Absolutely different from what you're seeing now. actually. So you know that is what is switching on and switching off. And Hmm. never once has any of the problems. Maybe some of the problems I relate to. It's not that I'm a perfectionist, or it's not that my life is perfect. It's not that I don't have anger issues. It's not that I've got a perfect family. ऐसा कुछ भी नहीं है. सबकी लाइफ में सबकी प्रॉब्लम्स होता है. Definitely, yeah. एंड हर बार हर क्लाइंट के साथ कुछ ना कुछ हम जरूर रिलेट कर लेते हैं. Hmm. Right. Yet we learn to switch on and switch off. My problems are my problems. My values are my values. We don't topo them on our clients. No. That is again an ethic that we follow. Hmm. See, counselors have a lot of ethics. We follow those ethics. तभी तो हम लोग अच्छे से काउंसलिंग कर पाएंगे ना. जी. सबसे बड़ी बात है नॉन जजमेंटल. We don't judge anybody. It has been instilled in us. We have that warmth. We have that respect for our clients. कोई भी प्रॉब्लम में हो, कितना भी डिसऑर्डर हो, but we have that respect for our client. Empathy. To understand the client from his point of view, not to thopo our point of view. That is the biggest ethic of confidentiality. Whatever happens, whatever you say, I will not divulge anything unless and until my client gives permission. Right. So unless and until we don't follow all this, Hmm. how will the person who comes to us have that trust or faith on us? But ये सब लोगों के नजरिए में है भी नहीं, लोगों के जहन में भी नहीं है कि काउंसलिंग में ये सब होता है. So thanks to you for giving us this platform. मन की बात के काउंसलर, मी, बबीता, रेणु जी, 3 of us are co-founders of मन की बात, and we very strictly follow these ethics. For everybody listening, मैं आपको बीच में इंटरप्ट करूंगी कि अगर if you want to connect with Saroj ji and the team, you can connect them via their Instagram page. मन की बात नाम से पेज है, the journey within, and also you will also find the links in the description box or the details box depending on which platform you're listening or watching this video or podcast. Okay, continuing my last question, Saroj ji, about forgiveness. I was saying कि forgiveness देना या फिर that is a different thing. What about if we seek forgiveness? Like let's say कि अपने गुस्से में पेरेंट को कुछ बोल दिया. That is I think the biggest guilt we hold कि अपने पेरेंट को कुछ बोलता फिर ये हमें नहीं बोलना चाहिए था. And we cannot take it back. And we keep carrying that guilt कि why did I say this thing that day to this person? How to come out of that? See, first of all is accept कि मैंने ये बोला है वो गलत था. That acceptance needs to be accepted. हम लोग accept ही नहीं करते.
हम लोग रीजनिंग देना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने इसलिए इस रीजन बोला। से बोला, मैंने इस रीजन से बोला, अपने आप को कंसोल करने के लिए, अपने आप को उस गिल्ट से बाहर निकालने के लिए। सो एक्सेप्टेंस नीड्स टू बी देयर कि यस आई वाज रॉन्ग, एंड व्हेन यू नो यू आर रॉन्ग, व्हेन यू आर अवेयर आई वाज रॉन्ग, सो व्हाई कैरी दिस गिल्ट का फीलिंग? यू कैन ऑलवेज गो एंड टेल योर पेरेंट्स आई वाज रॉन्ग, they're always there. What is stopping you from going and telling that I am sorry, I was wrong? यही हम लोग यही गलतियां करते कि हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट नहीं करते, वी स्टार्ट गिविंग एक्सक्यूजेस अपने आप को शांत करने के लिए। हम्म। सेकेंडली, कहीं ना कहीं मन में वो गिल्ट रहता है, तो वी गिव इट टाइम कि धीरे धीरे टाइम के साथ वो हील हो जाएगा, बट वी डोंट टेक प्रॉपर स्टेप्स टू मेंड इट। ईच पर्सन हैज गॉट देयर ओन वेज टू डू इट। कोई एकदम असर्टिवली जाके बोल देता है आई एम वेरी सॉरी आई डिड दिस, कोई के और तरीके होते हैं, कोई पेरेंट्स को कुछ और तरीके से खुश कर देता है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट पेरेंट्स बिकॉज यू गिव दैट या एग्जांपल, या या बट बी इट विद हर एनीबॉडी। रिलेशनशिप का इसी तरह से देयर आर सम वेज टू यस, टेल देम दैट यू आर सॉरी। आई यूज टू टेल एवरी स्टूडेंट कि आपने मम्मी को गलत बोला, गो एंड गिव हर अ हग, हम्म। दैट विल रिजॉल्व एवरीथिंग। जस्ट गिव हर अ हग एंड टेल हर यूर सॉरी, दैट्स ऑल शी नीड्स। लेकिन let me bring this to your notice कि giving a hug is also a burden हाउ? कुछ बच्चों के लिए। There are lots of stories, you know. Before we started this interview, you told me कि Saroji, you can write a book about all the instances that Yes. you heard, right? Yes. So this is also one of the stories that this person could not hug. Said, I cannot hug my mom. I don't get that feeling to hug my mom. I don't want to go into the details of it, Yes. but hugging is also not easy. So a child needs to be taught how to hug. जब उसको वो प्यार नहीं मिलता है, तो वो उससे अवेयर ही नहीं होता है व्हाट एग्जैक्टली अ फीलिंग ऑफ हग क्या होता है, व्हाट इज हग। वी डोंट नो किसी की स्टोरी क्या है और हम लोग तुरंत जज कर लेते हैं। वी डोंट नो किसी की स्टोरी क्या है, वी डोंट नो व्हाट दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू, बट जजमेंट के टाइम हम लोग उसको तुरंत कटघरे में खड़ा कर लेते हैं, एंड एक सेकेंड में उसका पूरा चरित्र हम लोग उतार के साइड रखते हैं। बट वी डोंट नो व्हाट दैट पर्सन हैज बिहाइंड हिम, what feelings he has gone through, what situations, what are his life experiences, हम लोग को नहीं पता होता है। तो क्या जजमेंट करना सही है? ये जो क्रिटिसिजम्स होते हैं हमारे सोसाइटी में, ये जो एक एक सेकंड में हम लोग तुरंत जजमेंट करके, एक सेकंड में ये अच्छा इंसान, ये बुरा इंसान, इसका ये अच्छा, इसका ये बुरा हम करते हैं, तो what that person has gone through, everybody has a story. Saroji, if someone is having anxiety issues or uh, first of all, tell us difference between panic attacks and anxiety. See, anxiety and panic attacks are connected. Okay. एंजाइटी का डीपर लेवल और हायर लेवल इज पैनिक अटैक्स। एंजाइटी हम लोगों को बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए भी हो सकती है। बच्चा लेट से क्यों आ रहा है, मेरे को ऑफिस में लेट हो रही है, गाड़ी रास्ता जैम हो गया। दिस लाइफ हैजार्ड्स आल्सो कॉज अस एंजाइटी ऑन एवरी डे टू डे लाइफ्स, राइट? कि चलो आज मेड नहीं आई, या आज मुझे निकलना है, मेरी गाड़ी खराब हो गई, मेरा टायर पंक्चर हो गया, वट एवर दोज छोटा छोटा वी कॉल इट लाइफ हैजर्ड्स। ये भी हमको एंशियस करता है, राइट? बट एंजाइटी अगर किसी पर्टिकुलर चीज को लेके हो जाती है, लाइक एंजाइटी ऑफ हाइट्स, एंजाइटी ऑफ फ्लाइट, एंजाइटी ऑफ एग्जाम्स, एंजाइटी ऑफ दिस, एंड वो जब इस लेवल तक पहुंच जाती है, that sends us into panic attacks. Okay. Like there was this girl जो crowd से she used to get anxious. So when she used to go for puja pandal hopping, she was also a client of mine. पंडाल हॉपिंग में जब बहुत खाली पंडाल होता था बहुत इंजॉय करके आती, बट एज सून एज वो पंडाल क्राउडेड हो जाता था, she used to get those panic attacks. Panic attacks mean something is going to happen to me now. Somebody is flying and turbulence हो गया, तो they'll get that panic attack, they'll start crying. कई बार तो वो लोग they lose their senses also, बेहोश भी हो जाते हैं या एक क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाते हैं, ब्रीदिंग नहीं होती है उन लोगों को। These are higher levels of stress, higher levels of anxiety.
So we need to again deal with it in a different manner. Hmm. Quality stigmatization, desensitization. I'm Okay. sorry for the wrong term. We call it desensitization. ओके। अब ये तो समझ में आ गया कि अगर कोई भी इस तरह के किसी मेंटल इश्यूज से गुजर रहा है, दे शुड हाँ. डेफिनेटली सीक हेल्प एंड गेट काउंसलिंग डन। इट विल And रियली again, and again look for trigger points. Again, लुक I फॉर give you a tip जो हम लोग अपने सेशंस में सिखाते हैं. The first thing is recognize your trigger ट्रिगर points. पॉइंट। You will start पसीने आने लग जाएंगे, आप अपने हाथ को क्लेंच करने लग जाते हो, कई लोग शिवर करने लग जाती है। जाते हैं. आप उस समय अगर अपने ट्रिगर पॉइंट्स को पहचान लोगे एंड यू कैन रिमूव योरसेल्फ फ्रॉम दिस सिचुएशन एंड स्टॉप दोस पैनिक अटैक्स. देयर आर each person has a different trigger point. There are ways in which we identify these trigger points also. Client खुद नहीं पहचान पाएगा अपने trigger points, but हमारे skills, आपको हाँ, हम अपने, आप बता दोगे कि इस वजह से आपको ट्रिगर होता हाँ. है। See, we ask a lot of questions to our clients. हम्म। Lots of questions, lots of questions. उस क्वेश्चन से ही वो इंट्रोस्पेक्ट करता है. लास्ट कब हुआ था तो क्या हुआ था, इससे ये पहले आप हुआ, क्या उसके कर रहे पहले थे। क्या हुआ था, उसके पहले क्या हुआ था, उसके पहले, इसके पहले वाले इंसिडेंट में क्या हुआ था. देन वी आइडेंटिफाई कि दिस इज वन थिंग व्हिच हैपेंस फर्स्ट. व्हेन यू रिकॉग्नाइज दोस थिंग्स, you can help yourself. I will not say you can take control of everything, but at least you can help yourself. And the people around you, your own significant family members, वो लोग को अवेयर कर दो कि मैं इस प्रॉब्लम से, अगर ऐसा कुछ तुम लोग को दिखे तो हमको तुम लोग ऐसे हेल्प कर सकते हो. So there are many ways to deal with this, but you have to be conscious of what you are going through. You have to be aware of what you're going through. सो माई क्वेश्चन कंटिन्यूइंग विद आई वाज सेइंग कि अगर किसी को मेंटल हेल्थ इश्यूज है एनी टाइप ऑफ, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा, एंड दे आर सीकिंग हेल्प, दिस शुड बी द फर्स्ट स्टेप कि सीक हेल्प, टेक काउंसलिंग, फाइंड आउट द ट्रिगर पॉइंट्स, एंड देन आप जानो कि क्यों हो रहा है एंड हाउ टू गेट योर सेल्फ बेटर। बट हाउ एट दैट मोमेंट जब वो इंसान उस चीज से गुजर रहा है, इश्यूज से, हाउ शुड द फैमिली ट्रीट हर और हिम? See, first of the thing the family does कि ignore. हम्म। अरे ये तो ऐसे ही करता है, इसका बात छोड़ो, तो हर वक्त सैड रहती है, इसका छोड़ो, ये तो हर वक्त ऐसे ही सुस्त बैठा रहता है. तो फैमिली नीड्स टू बी अवेयर कि ये सुस्त क्यों बैठी रहती. पेशेंस, टाइम, लव, अफेक्शन, अवेयरनेस. काउंसलिंग के बारे में कोई नहीं जानता है, कोई एक्सेप्ट नहीं करता है कि इट इज अवेलेबल इन द मार्केट. एक्सपेंसिव, कॉस्ट वाइज, पीपल थिंक अरे ये तो ऐसे ही है, 2 बार डॉक्टर के जाते हैं आप, 1,000 रुपए देते हो, एक दवा खाते हो, आप ठीक हो जाते हो, राइट. बट काउंसलर आपको हेल्प करता है टू रिन्यू योर लाइफ, टू रीस्टार्ट योर लाइफ, टू रिफ्रेश योर लाइफ, टू पुल यू बैक फ्रॉम द डर्ट्स ऑफ अनहैप्पीनेस टू अ हैप्पी लाइफ. उसको लोग एक्सपेंसिव टर्म देते हैं. दिस इज व्हाई आई हैव बीन यूजिंग दिस वर्ड एक्सपेंसिव. दिस इज द थर्ड टाइम आई हैव यूज्ड दिस वर्ड एक्सपेंसिव. बट इज इट एक्सपेंसिव? डोंट यू गो आउट एंड हैव अ डिनर इन ताज होटल फॉर हैप्पीनेस? नहीं, जब जब प्रॉब्लम बड़ा हो जाएगा, जब प्रॉब्लम बड़ा हो जाएगा, जब बीमारी लग जाएगी स्ट्रेस की वजह से 10 और, उसके लिए हम लोग दे देंगे, बट स्टार्टिंग में प्रिवेंट किया जा सकता है, वहां पे एक्शन नहीं लेंगे। एक्शन. एंड पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि साइकोसोमैटिक डिजीजेस, आधे से ज्यादा का रीजन आपका मेंटल हेल्थ है. वी हैव टू मेक पीपल कॉन्शियस. दिस इज द विजन एंड मिशन ऑफ मन की बात, to bring into awareness. We are not doing this for money. We had been doing it voluntarily for a year and a half after we launched Man Ki Baat. But due to certain reasons, but because of people not valuing the time, the effort, we started charging. कि पैसे खर्च करेंगे तो थोड़ा वैल्यू तो देंगे. बट हमारा आज भी गोल है टू bring into vision, to bring into awareness that mental health needs to be taken care of. So we call ourselves preventive mental health counselors. We want to prevent people from going into the clutches of ill mental health instead of just keeping it aside and brushing it under the carpet.
वी We वांट टू also, ब्रिंग इट इनटू विजन कि मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है टू live a beautiful, fulfilling life. You know, I don't know how many people have heard about Maslow's hierarchy of your needs. okay, I haven't heard of it. So there was this Pyramid. psychologist called, yeah, this pyramid. He had made this pyramid, जिसमें he had made different levels of hierarchy. Hmm. एक ह्यूमन लाइफ का विजन क्या होना चाहिए. उसका टॉप था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. Hmm. First was the basic needs. The second, I won't go into the details. बहुत ज्ञान हो जाएगा. But हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी रिकग्निशन, अपने सोसाइटी में अपनी पहचान बनाने तक ही रह जाते हैं, वहां अटक जाते हैं हम लोग. उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ ही नहीं जाते, Hmm. क्योंकि उसके क्लचेस इतने स्ट्रांग होते हैं, इतने कंपैरिजन, इतने जजमेंट्स, इतने क्रिटिसिज्म्स, इतने प्रेजेस, अपने उस, वो वर्ड है ना, जदोजहद में रह जाते हैं, राइट. बट हम लोग, we are not aware of our purpose of life. Everybody has a purpose in their life. We are not even aware of our purposes. So unless and until we are not aware of our purposes, कि हम लोग what are we doing in this life? What is our purpose? What is our aim? What is our vision? What do I want to do with this beautiful life that I have been given? So unless and until I'm not aware of this purpose of life, how Hmm. will I move forward towards my ultimate goal? सरोज, ये बहुत बार ऐसा होता है कि लाइक हमारे बच्चों को सुनना पड़ता है कि ये कितना काला है, ये कितना नाटा है, ये कितना मोटा है, Hmm. इसको खाना नहीं खिलाते को, वगैरह वगैरह. आई एम लीविंग द पार्ट कि मदर उससे कैसे डील करे. टेल हाँ. मी कि हाउ टू मेक, इवन दो आई एम नॉट टेलिंग माई चाइल्ड कि तुम काले हो, नाटे हो, मोटे हो, वट एवर, बट Hmm. पीपल आर टेलिंग हिम और हर Hmm. what should, how should I, मतलब वो लोग भी कितना भी कर ले, फिर इवन दे स्टार्ट नोटिसिंग कि हाँ मम्मी मैं नाटा हूँ क्या, मम्मी मैं, मेरे को थोड़ा और गोरा होना चाहिए था क्या, मैं इतना काला क्यों हूँ. हाउ हाउ डू आई टेल माई किड्स कि डोंट थिंक अबाउट दीज पीपल. See, this is where a mother has to play a very active role to instill confidence in the child that he will be loved for whatever he has, whatever he is. She can explain it to him ना कि ऐसा होता है बेटा, नाटे लोग भी अच्छे होते हैं, गोरे लोग भी अच्छे होते हैं, काले लोग भी अच्छे होते हैं, बट लोग ऐसे ही आके बोलेंगे. एंड इफ यू डोंट लाइक इट, बी असर्टिव. See, this is again a thing that we teach कि अगर तुमको कोई बोल रहा है तो once what happens कि देखो, हम अगर एक पंचिंग बैग है, हम उसको पंच करते हैं तो वो वापस हमारे पास आता है, हम उसको वापस पंच करते हैं, वो वापस हमारे पास आता है. लेकिन अगर उस बैग को कोई पकड़ लेता है तो क्या वो हमारे पास वापस आता है? तो उस बच्चे को उस बैग को पकड़ना सिखाना है हमको, ताकि पंच करने वाले के पास हम वापस जाएंगे. अब वो कैसे हो? असर्टिवली बोलना कि, अगेन ना हाइपोथेटिकल केस, सपोज एक बुआ बोलती है, बेटा तू तो काला हो गया, तेरी बहन तो बहुत गोरी है. ठीक है, वेरी वेरी कॉमन कॉमन. एवरी हाउस होल्ड, राइट. हाँ हाँ. तो वो बेटा अपनी बुआ को बोल दे कि बुआ जी आप सही तो बोल रहे, लेकिन मुझे अपना रंग बहुत पसंद है. हम्म. नेक्स्ट टाइम से बुआ बोलने के पहले सोची. लेकिन हम चुप होके सल्व करके चले गए, तो what are you doing? Again, you're giving that back, sending that back to her. Next time she'll again say, पहले से तू आज ज्यादा काला लग रहा है ना, आज तो तू बड़ा गोरा लग रहा है, कुछ लगाया है क्या? This is what assertiveness is. हम्म. Creating a boundary. See, दो स्किल हर इंसान को सीखनी चाहिए, सेटिंग अ बाउंड्री एंड बीइंग assertive. ये दो स्किल अगर हर इंसान सीख ले तो लाइफ के कुछ प्रॉब्लम्स तो हल कर देंगे, बट उसके लिए आपको काउंसलर के पास जाना पड़ेगा. And और Man Ki Baat is open for this. All three of us are very skilled, very educated, very hardworking, very honest, very empathetic, with lots of ethics.
Let me tell you guys, I have met Saroj ji, Babita ji, Renu ji, all three of them. I think अगर आपको जरूरत है, अगर जरूरत, I think सभी को होता है जरूरत, that we need to talk to people, we need to find out trigger points of different things that we feel, the way we act. तो प्लीज कॉन्टैक्ट देम, एज आई सेड सब डिटेल डिस्क्रिप्शन में होगा, और डिस्क्रिप्शन अगर आप नहीं भी देख रहे हो तो सर्च कर लो मन की बात, द जर्नी और journey within. you'll find it, and then please contact them. सरोज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ इट्स लाइक माइंडफुलनेस जिसको बोल रहे हैं, समझ में आया जो चीज हम लोग कभी ध्यान भी नहीं देते थे, वो सब चीज के बारे में समझ रहे हैं, एंड आई एम श्योर कि इवन द लिसनर्स एंजॉयड दिस कन्वर्सेशन अ लॉट. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. And thank you, Pritika, for giving us this platform, for making Mann Ki Baat a little more aware in the society. People coming to know about Mann Ki Baat, we'll be very thankful to you if we could help a certain amount of people more in our lives, so Mann Ki Baat could reach its vision. Thank you so much, Pritika. It was lovely talking to you. Same here, Saroj ji. Same here.